हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी लर्न। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजी टेट 2019 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चले और आप सीजी टेट 2020 में अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। रीड द पैसेज फर्स्ट एंड सेकेंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सीरियल नंबर 61 to 75 गिवन बिलो। दो पैसेज दिया गया है, पैसेज फर्स्ट एंड सेकेंड, और उसमें से 61 से लेके 75 तक का क्वेश्चन बना है। तो देखिए, ये पैसेज 1 है, कितना लंबा है। देखिए, ये पैसेज 1 ही है। इसके अलावा और एक पैसेज है, और दोनों को मिलाकर 61 से 75 तक का क्वेश्चन बना है। तो पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करके यदि आप पैसेज को रीड करोगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा। इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, पैसेज 1 रीड कर लेते हैं। Our world is a hungry world, but it does not have to be. It is a sick world, but it does not have to be. It is an impoverished world, but it does not have to be. How soon can we change it? What will it cost? What will our world be like afterward? Our task can be stated safely enough. The right combination of good land, good food, raw materials, factories, and healthy people can produce a world of plenty for everyone. Today we have at our command the knowledge to enable us to build up the right combination on a worldwide scale. Fundamental to the whole problem is health, because fit people have the energy and inclination to take on bold enterprises. What we must work for it to set rolling a snowball of progress. It will gather size as it travels. हमारी दुनिया एक भूखी दुनिया है, लेकिन यह होना जरूरी नहीं है। यह एक बीमार दुनिया है, लेकिन यह होना जरूरी नहीं है। यह एक गरीब दुनिया है, लेकिन यह होना जरूरी नहीं है। कितनी जल्दी हम इसे बदल सकते हैं? इसकी कीमत क्या होगी? हमारी दुनिया बाद में कैसी होगी? हमारा कार्य पर्याप्त रूप से किया जा सकता है। अच्छी भूमि, अच्छा भोजन, कच्चे माल, कारखानों और स्वस्थ लोगों का सही संयोजन सभी के लिए बहुत सारी दुनिया का उत्पादन कर सकता है। आज हमारे पास दुनिया के लिए हमें सक्षम करने के लिए ज्ञान है। पूरी समस्या के लिए मौलिक स्वास्थ्य है, क्योंकि फिट लोगों में बोल्ड उद्यमों को लेने की ऊर्जा और झुकाव है। प्रगति के लिए एक स्नोवॉल को स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह यात्रा करते ही आकार ले लेगा। By making some countries healthier than they were, we make sure their people will produce more food. Is the food production of the world increase, so will be available energy of mankind grow greater. This will lead to a higher production still of food and other things. Gradually we shall get rid of the dead weight of illness and starvation that is holding up progress. At an ever increasing speed we shall move towards a world of plenty in which all share. कुछ देशों को स्वस्थ बनाने से यह सुनिश्चित कर रहे थे कि उनके लोग अधिक भोजन का उत्पादन करेंगे। जैसे जैसे दुनिया का खाद्य उत्पादन बढ़ता है, वैसे वैसे मानव जाति की उपलब्ध ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। इससे भोजन और अन्य चीज़ों का उत्पादन अधिक होगा। धीरे धीरे बीमारी और भूखमरी के मृत वजन से छुटकारा पा लेंगे, जो प्रगति पकड़ रहा है। एक निरंतर वृद्धि की गति से हम बहुत सारी दुनिया की ओर बढ़ेंगे, जिसमें सभी की हिस्सेदारी होगी। How long will it take? If we put our minds to it, we can transform the world in 20 years, but it will need the nation to work together. The more we scare each other and threaten each other, the more we shall spend on preparing for a destructive war, and the less we shall spend on ensuring a constructive and continuing peace. What will the new, healthy, prosperous world be like when we have built it together? Making guesses about the future is always risky, but we can see some of the outline of what is to come. There will be less tension in the world, because there will no longer be such great differences between the have and have not nations. There will be more leisure for all, because there will be more fit people to share the work of the world
The world will be more beautiful because men will have time, money, and energy to spend on making it so. Ugly towns will be restored, desert will be watered, wars will become increasingly less likely because we shall all be directing our powers for the benefit of all. Each of us has a choice to make. We can choose to help transform the world in however small a way, or we can choose to regard the whole matter is not our concern and so leave the world to drive towards disaster. We can team up with what is just and right, or shirk our responsibilities. कितनी देर लगेगी अगर हम अपना दिमाग इसमें लगाते हैं तो हम 20 साल में दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्र को मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी। जितना अधिक धन हम एक विनाशकारी युद्ध की तैयारी पर खर्च करेंगे और जितना कम हम एक रचनात्मक और निरंतर शांति सुनिश्चित करने पर खर्च करेंगे। जब हम इसे एक साथ बनाएंगे तो नई स्वस्थ समृद्ध दुनिया कैसी होगी, भविष्य के बारे में अनुमान लगाना हमेशा जोखिम भरा होता है, लेकिन हम आने वाले समय की कुछ रूपरेखा देख सकते हैं। दुनिया में तनाव कम होगा क्योंकि है और राष्ट्र नहीं है के बीच इतने बड़े मतभेद नहीं होंगे। वहाँ सभी के लिए और अधिक आराम होगा क्योंकि दुनिया के काम को साझा करने के लिए अधिक फिट लोग होंगे, क्योंकि परमाणु शक्ति और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से मनुष्य की सेवा में बदल जाएंगे। दुनिया अधिक सुंदर होगी क्योंकि मनुष्य के पास इसे बनाने में खर्च करने के लिए समय, पैसा और ऊर्जा होगी। बदसूरत कस्बों को बहाल किया जाएगा, रेगिस्तान को पानी पिलाया जाएगा। युद्धों की संभावना कम होती जा रही है क्योंकि हम सभी के लाभ के लिए हमारी शक्ति का निर्देशन करेंगे। हम में से प्रत्येक के लिए एक विकल्प है, इस दुनिया को बदलने में मदद करने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि छोटे तरीके से या हम इस पूरे मामले को अपनी चिंता का विषय नहीं मान सकते। हम जो उचित और सही है या अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं उसे अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। फंडामेंटल टू द होल प्रॉब्लम इज हेल्थ बिकॉज फिट पीपल हैव द एनर्जी एंड इंक्लिनेशन टू टेक ऑन बोल्ड इंटरप्राइजेस। व्हाट वी मस्ट वर्क फॉर it to set rolling a snowball of progress, it will gather sizes it travels. In the above lines, the expression said, rolling a snowball of progress means संपूर्ण समस्या के लिए मौलिक स्वास्थ्य है क्योंकि फिट लोगों में बोल्ड इंटरप्राइजेस उद्यमों को लेने की ऊर्जा और झुकाव है। प्रगति के एक स्नोबॉल को स्थापित करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, यह यात्रा करते ही आकार ले लेगा। उपरोक्त पंक्ति में प्रगति के एक स्नोबॉल को स्थापित करने का अर्थ निर्धारित किया है। दोस्तों यहाँ पर स्नोबॉल मीन्स बर्फ की गेंद नहीं है, प्रगति के स्नोबॉल कंपेयर की जा रही है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। स्टार्ट समथिंग टू ब्राइंग अबाउट प्रोग्रेस विच विल कीप ऑन इंक्रीजिंग लाइक अ स्नोबॉल कलेक्टिंग। प्रगति के बारे में मीन्स प्रगति लाने के लिए कुछ शुरू करें जो स्नोबॉल की तरह बढ़ता रहेगा और अधिक बर्फ इकट्ठा करेगा। देखिए स्नोबॉल की तरह बढ़ता रहेगा बोला गया है यहाँ पर। जिस प्रकार हम स्नोबॉल मीन्स बर्फ की छोटी छोटी गेंद से बहुत सारा बर्फ कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्तों लाइन उपरोक्त लाइन में बताया गया है कि फिट लोगों में बड़े उद्यमों को लेने की ऊर्जा और झुकाव है। प्रगति के स्नोबॉल को स्थापित करने के लिए फिट लोग अधिक भोजन का उत्पादन करेंगे। जैसे जैसे दुनिया का खाद्य उत्पादन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मानव जाति की उपलब्ध ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। इससे भोजन और अन्य वस्तुओं का उत्पादन अधिक होगा। धीरे धीरे बीमारी और भूखमरी के मृत वजन से हम लोग क्या करेंगे, छुटकारा पा लेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों ऑप्शन बी देख लेते हैं। स्टार्ट समथिंग टू ब्राइंग अबाउट अ स्नोबॉल कलेक्टिंग मोर अमाउंट ऑफ स्नो इन द हाउसेज इन विंटर सीजन। सर्दियों के मौसम में घरों में अधिक मात्रा में बर्फ जमा करने वाले स्नोबॉल लाने के लिए कुछ शुरू करें। तो यहाँ पर स्नोबॉल का मतलब बर्फ की गेंद से नहीं है, तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन सी। रोलिंग स्नोबॉल इन द स्नो टू हाइड द अगलीनेस। कुरूपता को छिपाने के लिए बर्फ में स्नोबॉल को रोल करना, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The writer in the passage says, each of us has a choice to make. What is the choice before us? पैसेज में राइटर कहता है हम में से प्रत्येक के पास चुनाव करने का विकल्प है। हमारे सामने क्या विकल्प है? ऑप्शन फर्स्ट है वी कैन टीम अप विथ एवरीवन हु ऑफर्स अस अ लुक्रेटिव जॉब।
हम उन सभी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं जो हमें एक आकर्षक नौकरी प्रदान करते हैं। तो पैसेज में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं दोस्तों, वन मस्ट नॉट फील एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वन नेशन इन सोसाइटी। किसी को राष्ट्र और समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करनी चाहिए। यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, देयर मस्ट बी ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। उस दिशा में क्या सही है, क्या गलत है और क्या काम कर रहा है, इसकी समझ होनी चाहिए। दोस्तों, हमने पैसेज में पढ़ा है कि हम सभी के पास एक विकल्प है, इस दुनिया को बदलने में मदद करने का विकल्प। तो दोस्तों, हम मदद तभी कर सकते हैं जब हमें सही गलत की पहचान हो और उस दिशा में क्या कार्य होना चाहिए इसकी समझ हो। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों, ऑप्शन डी देखते हैं। वी मस्ट साई अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिमेन इनडिफरेंट टू द कंसर्न ऑफ सोसाइटी। हमें सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से बचना चाहिए और समाज की चिंताओं के प्रति उदासीन रहना चाहिए। तो पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो गलत ही हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉसिबली द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है हेल्थ इशू एंड देयर इम्पैक्ट, स्वास्थ्य के मुद्दे और उनका प्रभाव। ऑप्शन बी है अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया। ऑप्शन सी है वेस्टेड वेल्थ, व्यर्थ धन। और ऑप्शन डी है द अरिथमेटिक ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का अंगणित। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अ न्यू वर्ल्ड, क्योंकि इस पैसेज में बताया गया है कि हमारी दुनिया भूखी है, प्यासी है, गरीब है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। हम सब मिलकर कार्य करें तो हम बहुत जल्दी प्रगति ला सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं और एक बहुत ही सुंदर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें कस्बों की स्थिति को बहाल किया जाएगा, मीन्स सुधारा जाएगा, रेगिस्तान को पानी पिलाया जाएगा। युद्धों की संभावना कम होती जा रही है क्योंकि हम सभी के लाभ के लिए हमारी शक्ति का निर्देशन करेंगे। इस प्रकार पैसेज में एक नई दुनिया की बात की गई है, तो अ न्यू वर्ल्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द फूड प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज, सो विल द अवेलेबल एनर्जी ऑफ मैनकाइंड ग्रो ग्रेटर। This will lead to a higher production still of food and other things. In the above sentence, the underlined lead to is a। जैसे जैसे दुनिया का खाद्य उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे मानव जाति की उपलब्ध ऊर्जा अधिक बढ़ेगी। इससे भोजन और अन्य चीजों का उत्पादन अधिक होगा। सेंटेंस में अंडरलाइन लीड टू है। ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों क्लाउज वाक्यांश। ऑप्शन बी है इन्फिनिटिव, क्रिया का सामान्य रूप। ऑप्शन सी है पास्ट पार्टिसिपल, भूतकालिक रूप। ऑप्शन डी है दोस्तों फ्रेजल वर्ब, वाक्यांश क्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देयर विल बी लेस टेंशन इन द वर्ल्ड बिकॉज देयर विल नो लॉन्गर बी सच ग्रेट डिफरेंसेस बिटवीन द हैव एंड हैव नॉट नेशंस। व्हाट डज द हैव एंड हैव नॉट नेशंस मीन इन द एबव लाइन्स। दुनिया में कम टेंशन होगा क्योंकि है और राष्ट्र नहीं है के बीच इतने बड़े मतभेद नहीं होंगे। उपरोक्त लाइन में है और राष्ट्र नहीं है का क्या मतलब है। ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों द रिच एंड पुअर नेशंस। ऑप्शन बी है द मिडिल एंड रिच क्लास नेशंस। ऑप्शन सी है द रिच एंड अपर मिडिल क्लास नेशंस। और ऑप्शन डी है द नियो रिच क्लास एंड पुअर नेशंस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट द रिच एंड पुअर नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। इस दुनिया में क्या गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधनों की कमी है। ऑप्शन बी है देयर इज प्लेंटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नो प्रॉब्लम ऑफ मनी इज फेस्ड बाय पीपल। बहुत सारे आर्थिक संसाधन हैं और लोगों को पैसे की कोई समस्या नहीं है। ऑप्शन सी है देयर इज नो हंगर एंड नो हेल्थ इश्यूज बट अदर चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल। लोगों के सामने कोई भूख नहीं है और कोई स्वास्थ्य समस्या भी नहीं है, बल्कि अन्य चुनौतियां हैं। ऑप्शन डी है दोस्तों हेल्थ एंड पुअर्टी आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड टुडे। स्वास्थ्य और गरीबी आज विश्व की प्रमुख चुनौतियां हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आवर वर्ल्ड इज हंग्री वर्ल्ड बट इट डज नॉट हैव टू बी, इट इज अ सिक वर्ल्ड बट इट डज नॉट हैव टू बी,
इट इज़ एन इम्पोरिज्ड वर्ल्ड बट इट डज नॉट हैव टू बी। हमारी दुनिया भूखी दुनिया है लेकिन यह होना जरूरी नहीं है। हमारी दुनिया बीमार दुनिया है लेकिन यह होना जरूरी नहीं है। हमारी दुनिया गरीब दुनिया है लेकिन यह होना जरूरी नहीं है। द वर्ड इन इटैलिक्स इम्पोरिज्ड इज यूजलेस। यहाँ पर इम्पोरिज्ड वर्ड यूज हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है नाउन संज्ञा, ऑप्शन बी है प्रोनाउन सर्वनाम, ऑप्शन सी है एडवर्ब क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी है एडजेक्टिव विशेषण। दोस्तों हम सभी को पता है कि अमीरी गरीबी छोटा बड़ा मोटा पतला ये सब क्या है विशेषता, और विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव विशेषण। दोस्तों विशेषण और विशेषण के टाइप पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, डिटेल से व्याख्या की गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not true in the context of the passage? पैसेज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है हेल्थ इज अ बिग इशू इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। विकास के मार्ग में स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, तो यह तो राइट है। ऑप्शन बी है दोस्तों इवन डिस्पाइट द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड लैंड हेल्थ इशूज पोज अ बिग प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट। भोजन और भूमि के समुचित संयोजन के बावजूद स्वास्थ्य मुद्दे विकास में एक बड़ी समस्या पैदा करते हैं, ये भी राइट है। ऑप्शन सी है द मोर अमाउंट ऑफ मनी वी स्पेंड ऑन वॉर द मोर कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट वी गेट। जितने अधिक धन हम युद्ध पर खर्च करते हैं उतने ही रचनात्मक परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। यह पैसेज के अकॉर्डिंग गलत है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी है देयर विल बी लेस टेंशन इन द वर्ल्ड व्हेन देयर इज कंप्लीट इक्वालिटी इन सोसाइटी। समाज में पूर्ण समानता होने पर दुनिया में कम अवहेलना होगी। पैसेज के अकॉर्डिंग ये भी राइट है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।